Hello everyone, this is Hira Tikari. Welcome in our today's mathematics class. Students, in our previous video we have completed 5.1 and I know that questions are a little bit complicated, but see students, if you know the property, any question will be there, it will be very easy. So today we are going to start 5.2 exercise and total 6 questions we are having in this exercise. Again, in this whole exercise, all the questions are based on the properties only. अगर properties easily you will find out, you will just write down the answer. That's it. और कुछ नहीं है student, only properties and properties. So learn the properties, and before starting this exercise, you have to take a quick look on your properties one page. Okay, I hope you have written all the properties because वही question हम दोबारा करने वाले हैं in this exercise. So take a quick look on the properties. Now question number 1 we have state the property. See, we have to tell the property. जो ये question है इसमें कौन सी property use हुई है, that's it, nothing else. See, if A is parallel to B, this sign is a parallel sign. क्या आपको पता है दो lines जो extend करें उसे parallel होती है straight line, तो ये straight line type है. So if A is parallel to B, then angle 1 is equals to angle 5. According to which property? ये आपकी A है, ये आपकी B है स्टूडेंट. पैरेलल लाइंस, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है. ऑल्दो दिस नॉट बीइंग यूजिंग, तो इट डजंट मैटर. ये ट्रांसवर्सल देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हाट आई टेल यू, हमेशा जो भी कंडीशन गिवन है एक रफ फिगर खुद के लिए बनाओ. अकॉर्डिंग मींस दिस इज रिजेंबलिंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. जैसे फर्स्ट पार्ट में ये ए बी बनाया है, ट्रांसवर्सल लाइन एंगल 1 का है, हियर इज एंगल 1, एंगल 5, हियर इज एंगल 5. और देखो स्टूडेंट, एंगल 1 और एंगल 5, बाकी सारे एंगल जस्ट छोड़ दीजिए बिकॉज आस्किंग अबाउट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1. अब देखो दो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन के ऊपर है और ये भी इस लाइन के ऊपर है. सेम साइड सेम पोजीशन, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. Yes, corresponding property. It means yes, angle 1 is equals to angle 5. Which property? According to corresponding property. Corresponding angle property you can say. Very simple student. दिख रहा है आपको? सेम साइड सेम पोजीशन, ऊपर की साइड लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे. सो यू जस्ट लर्न द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू दिस ओनली. Okay, now say second part. If angle 4 is equals to angle 6, then A is parallel to B. Angle 4. Let's have a look. Again एक बनाइए आप. Parallel line transfer. Angle 4 का है, ये है angle 4 और angle 6 का है, ये है angle 6. अब स्टूडेंट देखो, ट्रांसवर्सल के एक उस साइड और एक इस साइड, एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ, बट है लाइन के अंदर. अंदर है इट मींस इंटीरियर है, इनसाइड है तो मींस इंटीरियर. अब देखो है किस साइड, एक ऊपर एक नीचे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, मींस ऑल्टरनेट पोजीशन पे है ना. सो यू विल से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, because they are interior alternate angle, so therefore yes, A is parallel to B. Fine, क्योंकि ये तभी कंडीशन सेटिल जब दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जो एंगल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर. है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर? यस, इट मींस यस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. बट हमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी बीइंग यूजिंग. राइट स्टूडेंट, ये रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर डूइंग द क्वेश्चन. और जब भी क्वेश्चन करो खुद से बनाओ. Draw it by your own and just consider the given one condition. बाकी एंगल छोड़ दीजिए, ठीक है. Third, angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree. So again make it transversal. Angle 4 का है, here is angle 4 and this is angle 5. और देखो स्टूडेंट, last property in the transversal interior side और सेम साइड पे, यहाँ पे भी अंदर थे बट ये ऑपोजिट साइड पे थे. ये लेफ्ट साइड पे तो वो राइट साइड पे है, बट यहाँ पे दोनों ही लेफ्ट साइड पे है. तो ये कौन से हैं? इंटीरियर एंगल of the transversal of the same side are
supplementary. Right, student? I property. So it means the interior angle sum of the transversal on the same side is supplementary. It means 180 degree supplementary. That is angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree. ये condition बन रही है. It means our A and parallel to B. कौन सी यूज हुई? Got this property, student? So just write. अगर आपको property आती है, directly put it down and then you got the answer. Okay, I hope you got this question. Now moving further, question number 2. Students, coming to question number 2. See, again same type of question. हर question same है property base पे. You just take a turn your page means before doing any question related to property. हर बार उसे revise करो, हर question में revise करो. Okay, then it will be better understand with the question and you will easily learn the properties. हर बार हर question में you learn the property, you revise the property. Okay, student? Okay, now see first part. Question क्या है? From figure, this figure identify these properties you have to identify. Pair of corresponding angle. Corresponding means same side same position. अब देखो स्टूडेंट, सेम साइड सेम, अब खुद बनाओ पहले. सेम साइड सेम पोजीशन मतलब अगर आप ये ऊपर की तरफ ले लाइन के ऊपर तो यहाँ भी लाइन के ऊपर कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 5. सो राइट डाउन एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉमा सेम साइज सेम पोजीशन. अब ये लाइन के नीचे है एंगल 2 और दूसरी लाइन के नीचे एंगल 6. फाइन. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे भी एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन सेम साइड. अगर वो लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी लाइन के ऊपर ही होना चाहिए. आई होप यू गॉट. एंड ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया है. सेम टाइप क्वेश्चन, राइट? सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. पहले तो इंटीरियर लाइन के अंदर ही देखने हैं. अब ऑल्टरनेट, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट. वेरी सिंपल. सो इंटीरियर 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5 और एंगल 2 and एंगल 8. एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी है बट पूछा क्या है? सिर्फ इंटीरियर, तो सिर्फ वही लिखेंगे. गॉट स्टूडेंट? नाउ सी पार्ट, थर्ड पार्ट. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. अब पेयर किसका? इंटीरियर एंगल का. ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. वेरी सिंपल स्टूडेंट. सेम साइड कौन से? एंगल 3 एंड एंगल 8 और एंगल 2 एंड एंगल 5. दैट्स इट. वेरी सिंपल. नाउ फोर्थ पार्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अगेन सेम, क्रॉस, आमने सामने. सो ये क्रॉस हो रहा है आमने सामने. एंगल 1, एंगल 3, देन एंगल 2 के सामने एंगल 4, देन एंगल 8 के सामने एंगल 6 एंड एंगल 5 के सामने एंगल 7. वेरी सिंपल स्टूडेंट. मैंने बोला था आपको, इफ यू नो द प्रॉपर्टी यू नो द आंसर. वेरी सिंपल. Got student? So this is all about your question number 2. Now coming to question number 3. Now students, question number 3. Again same type of question. Find the unknown angle. पहले क्या था student? आपको angles given थे, आपको उनके name बताने थे. अब opposite. आपको name पता है कि ये angle vertical है, ये angle corresponding है, उनकी value निकालनी है. Right? Using the property. Okay? Very simple. So, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन यू विल स्टार्ट. फिगर में अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है. मतलब पहले आपके पास ऐसी पैरेलल लाइंस होती थी और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती थी. अब इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बना दिए. ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल. कंडीशन सेम है स्टूडेंट. ये इसके लाइन के अंदर की ये इंटीरियर और ये बाहर के एक्सटीरियर. सिंपली, राइट? नाउ
आपके पास एक ही एंगल गिवन है, दिस वन 125 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, ये 125 डिग्री है, ये लाइन है आपकी, आपको दिख रहा है कि ये भी लाइन है, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों भी, योर चॉइस किसके साथ भी, पर आपको सिंपली दिख रहा है लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर, एंगल 125 प्लस है, ऐसे ही ई के साथ। तो योर चॉइस कैसे भी कर लो, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत मेथड्स हैं। द रीजन इज आप उस क्वेश्चन को किस नजरिए से देखते हैं, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, right students? So please understand the question first. Okay, so I'm starting, I'm doing 125 degree plus e is equals to 180 degree. Why? Because of linear pair. कंडीशन जरूर मेंशन करनी है स्टूडेंट, लीनियर पेयर, तो एंगल ई निकालेंगे हम 180 डिग्री, दिस विल गो दैट साइड माइनस 125 डिग्री, सो ई की वैल्यू आ गई आपकी 555 डिग्री, दिस इज ई वैल्यू। अब ई वैल्यू पता है, अब आपको पता है ये क्रॉस कर रही है लाइन, ये क्रॉस कर रही है, ई और एफ क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, सो यट यू विल राइट एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ। क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सिंपल। और दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो उनकी वैल्यू भी सेम होगी, सो एंगल एफ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। फाइन स्टूडेंट, ये एंगल ई और एफ आ गया। अब बचे ए बी सी डी। अगेन ये देखो, ये लाइन के अंदर है एफ और ए और डी भी। अब देखो अंदर है, ये लाइन के नीचे, ये लाइन के ऊपर, और अंदर की साइड है, नीचे ऊपर, ऑपोजिट की तरफ, नीचे ऊपर सेम साइड, सो alternate angle, और अंदर की साइड है तो इंटीरियर एंगल, सो एंगल F is equals to angle A because they are alternate interior angle, क्योंकि अंदर की साइड, alternate exterior angle भी होते हैं but they are लाइन के इनसाइड, तो alternate interior angle है तो सेम होंगे, इट मींस एंगल A भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। जरूरत पड़ी स्टूडेंट निकालने की, सिर्फ हमने प्रॉपर्टी यूज की और इजीली वी फाउंड। अब देखो A 55 है, उसका ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल C आल्सो, तो ये जैसे जैसे आपको प्रॉपर्टी पता लग रही है आप निकालते जाइए, जरूरी नहीं इसी रो में निकालोगे, आपकी मर्जी है, पहले एंगल F निकालो, कुछ भी निकाल लीजिए, योर चॉइस, बट इन सिस्टमैटिक मैनर, आपको इजी रहेगा। ओके, एंगल C A निकाल लिया, सो एंगल C भी यही लिख देते हैं 55 डिग्री। क्यों? Because vertically opposite angle, opposite angle, right student? अब बारी है B और D की, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है पर एक की भी वैल्यू नहीं पता, पर आप देखो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है, ए बी लीनियर पेयर बन रहा है, और ऐसे सी डी भी। अब आपकी मर्जी है बी की वैल्यू निकालो या डी की, विद द यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट? साफ दिख रहा है हमें, है ना? सो राइट डाउन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। नाउ लीनियर पेयर, तो एंगल ए क्या है 55, सो 180 माइनस 55 वुड बी 125 डिग्री, सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 125, वेरी सिंपल। और B निकल आया, so D easily we will find out how. Here I am doing angle B is equals to angle D because they are vertically opposite angles, right student? Simply, so angle D कितना हो गया 125 डिग्री। So have you seen student, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके कितने इजीली हमने सबकी वैल्यूज निकाली, and they are very interesting also. कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है। दी क्वेश्चन आर वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप समझ के करोगे। सो एंगल ई एफ ए बी सी डी ई एफ सबकी वैल्यू निकल है, वेरी सिंपल यूजिंग द प्रॉपर्टी। सो दिस इज द गेम ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, first part we have find the value of x, and in both the question we have to find out the x value. Now see student, and condition is given to you L is parallel to M in the question only. Fine. अब वही बात है,
अगर एल एम के पैरेलल है, सो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन में कौन से एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकली ऑपोजिट, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर। फाइन, सो वो सारे एंगल्स यू हैव टू नो। फाइन, सो सी दिस क्वेश्चन, अगर ये एल एंड एम पैरेलल है, दिस इज ट्रांसवर्सल। अब स्टूडेंट देखो, ये लाइन के ऊपर है बट ये लाइन के इस साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड नहीं है, सेम पोजीशन नहीं है। But means this x you can find out any method। देखो, या तो अगर ये 110 है तो इसका ये एंगल क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट। तो सपोज ये एंगल 1 हो गया, एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट 110 आल्सो। सो ये दोनों अंदर क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल सम क्या आ जाएगा? 180, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, this is angle 10. If I take this one angle 1, so this is one also be 110 degree by corresponding same position same side। So means student आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, but the thing is basic knowledge about the equation। Okay, अभी दो तरीका I have told you right now, 2-3 method more are there, but simply आप कोई भी एक तरीका अपने दिमाग में रखिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सपोज आई एम डूइंग दिस ओनली। सो सॉल्यूशन आई एम डूइंग, सपोज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एन 110 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हमें लेट करना पड़ता है फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि अगर वो कंडीशन है कि एल पैरेलल है एम के, वही ट्रांसवर्सल है, तो हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सो वी कैन लेट हियर एंगल 1 फ्रॉम आवर साइड। अगर ये एंगल 1 है, नाउ सी एंगल 1 प्लस एक्स लीनियर पेयर। राइट, सो राइट डाउन एंगल 1 प्लस एंगल x is equals to 180 degree because they are making linear pair। So angle 1 is 110 plus x we don't know 180 degree, so x value will be 180 minus 110, so 0 minus 0 7, so x value is 70 degree। Very simple student, using property we found। Fine, now coming to this question। Question is this parallel line and two transversal are there, है ना? No, because question क्या है? L है parallel M के, means these two lines are parallel। ये दो लाइन पैरेलल है L and M, और ये जो है ट्रांसवर्सल है। फाइन, और नीचे भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बट हमें नीचे का देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हियर इज 110 डिग्री एंड हियर इज x। एज यू कैन सी, लाइन के लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, लाइन के लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, सेम साइड सेम पोजीशन। सो व्हाट इज दिस? एंगल x is equals to 110 degree या 100 degree it is I think in the equation। So 100 degree, so why? Because of corresponding angles, that's it। So see student how easy the question are on the basis of property। Again saying please learn the properties। So this is all about question number 4। Now coming to question number 5। Question number 5 we have, in the given figure the arms of two angles are parallel। Two angles, arms means this arm and this arm, means this arm and this arm is parallel and ये और ये arm is parallel। Fine, ABC is 70 degree, this angle B is 70 degree। Find out DGC। DGC मतलब this angle and DEF and E this angle। Got student? आपको पता है जो मिडल में टर्म होती है, angle is forming there only, right? So see, now again I am making this figure just for simplification। Let's start the solution। और solution के लिए again I am making ये लाइन है और एक ये रे है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये लाइन जो है अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, फाइन, और दिस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूं, ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ये भी पैरेलल है, सो दीज टू आर्म्स आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर एज यू कैन सी। फाइन, सो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये एंगल जो है 70 है, तो ये एंगल क्या होगा? लाइन के राइट साइड, लाइन के राइट साइड, सेम पोजीशन, तो क्या होगा?
corresponding angle. So you will write angle G is equals to angle B because of corresponding angles. So G will be angles. So angle G would be 70 degree. निकाल लिया. Now angle E. अब देखो स्टूडेंट, again parallel line. This is also parallel line. ठीक है. So लाइन के ऊपर, लाइन के इस पैरेलल लाइन के ऊपर and same side. This will also corresponding angle. It means angle G is equals to angle E. Why? Because of corresponding angle. So angle E is equals to 70 degree. Got student? अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं then easily you found any type of question, any type of angle. Got? So this is question number 5. Now coming to last question of this exercise. Coming to our last question of this exercise. Again same type of question based on property. So students, two questions I'm doing over here and these two, third and fourth part, these are homework for you. Use the property and solve the question. Or the very simple question is, in the given figure, these figures are being given to you. You have to find out whether L is parallel to M. क्या ये L M के parallel है या नहीं. So इसके लिए what we have to do? जो भी कंडीशन हम लगा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. वर्टिकली ऑपोजिट की प्रॉपर्टी तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. देन ओनली दे विल बी पैरेलल. क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नो, अब क्वेश्चन उल्टा है. हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है इट मींस दे आर पैरेलल, नहीं कर रही इट मींस दे आर नॉट पैरेलल. फाइन स्टूडेंट. सो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी विल अज्यूम दैट आवर गिवन कंडीशन इज पैरेलल. ठीक है, उसको अज्यूम करते हुए हम सॉल्व करेंगे. इफ आवर अजम्पशन इज कमिंग करेक्ट सो वी राइट यस इट इज पैरेलल. और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग आती है इट मींस यस दे आर नॉट पैरेलल. राइट स्टूडेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट पार्ट, लेट्स सी. सपोज पहले हमें लेट क्या करना है, क्या अज्यूम करना है कि ये पैरेलल हैं. ठीक है, अगर L पैरेलल है M के तो ये कंडीशन इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ ट्रांसवर्स ऑन द सेम साइड वुड बी 180. इतना ही होना चाहिए. लेट्स हैव अ लुक. 126 डिग्री प्लस 44 करके देखते हैं. 6 प्लस 4 10 7 क्या है स्टूडेंट 170. इट मींस सेटिस्फाइड नहीं हुई ना, 180 नहीं आया. So it means L is not parallel to M because it doesn't satisfy the supplementary angle condition for parallel lines. That's it. So कुछ भी लिख सकते हो, your choice only. Simply भी लिख सकते हो that 170 is not equal to 180. तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही. Got student? Are you getting my point? कि पहले हम assume करेंगे, अगर हमारी assumption सही आई तो yes, otherwise no. Got? Now coming to B part. Now see, L is parallel to M. Fine. So this is the transversal line. This is the transversal line. अब देखो स्टूडेंट ध्यान से, this is transversal, this is parallel. अगर ये एंगल 75 डिग्री है तो ये भी एंगल 75 डिग्री होना चाहिए, है ना, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. अभी हम लेट करें कि ये पैरेलल है तो ये 75 है लाइन के लेफ्ट साइड सेम पोजीशन, तो ये भी 75 होना चाहिए. तो इट मींस अगर इसे मैं x लेट कर लूँ और इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ 75 आएगी, इट मींस यस मैं कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ तो 75 आंसर आया तो हमारे L और M पैरेलल होंगे. अगर नहीं आया इट मींस ये नहीं होंगे. मींस जो भी आप प्रॉपर्टी एज्यूम करके लगा रहे हो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. दैट्स इट. लेट्स सी, ये x है,
x और 75 लीनियर पेयर बना रहे हैं। सपोज करिए ये एंगल x है हमारा, सपोज हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये लीनियर पेयर है। लेट्स टेक एंगल x plus 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, सो एंगल x इज इक्वल्स टू 180 minus 75. So let's 10 minus 5 5, 7 minus 7 0 and then 1. x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 105, बट ये दोनों क्या है आपस में corresponding. It means no, L is not parallel to M क्योंकि corresponding angle equal नहीं है. So what you will write, angle x is not equal to 75 degree as per the corresponding angle property. Fine student. So therefore L is not parallel to M. Have you got student what I have done? कि आप जो भी कंडीशन लगा रहे हो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 75 आना चाहिए, पर जब हमने वैल्यू निकाली 105 आई है. नो. सो सेम राइट एंगल थर्ड पार्ट के लिए भी आप ऐसे कुछ भी अज्यूम करना. सी ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है. अब देखो ये 125 3 डिग्री है, ये एंगल लीनियर पेयर बन रहा है ना. तो सपोज ये x है, अगर ये x की वैल्यू निकालनी होगी पर एंगल x और 57 पे कॉरस्पॉन्डिंग है, तो मतलब ये भी 57 ही आना चाहिए. जब आप एंगल x की वैल्यू निकालोगे 57 आएगा, तो यस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अदरवाइज नहीं हुई. तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट दीज टू क्वेश्चंस यू विल डू बाय योर ओन. Use your brain, use your properties. Only 2 questions I am giving you homework because these questions are very important student. Okay, so I hope you got the properties. You just use the property again and again I am saying. So this is all about today's class. We have done our 5.2 exercise. In next video we will be doing for the next exercise. So till then, thank you so much student. Bye bye, take care and do your work nicely.